Hello everyone, I am Shivani and welcome to my YouTube channel Civil Series. Our today's topic is moment of force which produced a rotational and a turning effect on a body by a force. For example, a turning of steering wheel, a force is applied tangentially on the rim of the wheel. Suppose this is a body and this is the movement center. The point about which movement is taken or movement is calculated is called as the movement center, and this is a force acting on a body, and this is the perpendicular distance between the point about which movement is required, movement is calculated, called as the movement center, and the line of action of force. It is represented by D, called as the moment arm. Moment arm is the perpendicular distance between the force and the moment center. Moment of force is the product of force and the perpendicular distance between the line of action of force and the moment of center. This is a force applied on this body and this is a moment center. From this point we calculate a moment. Okay, so the moment of force is the product of this force and this perpendicular distance. For example, force is 20 Newton and distance is 5 meter. So the moment of force is 100 Newton meter. Yes, I unit of moment of force is Newton meter, and the moment of force is the fixed vector. Moment of force is F into D, and moment of force is 0 when the force is passing through the moment of center, and when force is away from that moment of center, then the moment of force is F into D, and when force is passing through this moment center, then the moment of force is equals to 0. Types of movement: there are two types of movement, clockwise movement and anti-clockwise movement. Consider this is a beam. Beam is the horizontal member and which is a building component. We will discuss beam in upcoming lectures. These are the three forces which are acting on this beam, and this is the moment center. Moment center is the point about which we can calculate the moment. Okay, अब यहाँ पर ये तीन फोर्सेस है, F1, F2 एंड F3. अब यहाँ पर हमें मोमेंट कैलकुलेट करना है. सो मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए इस फोर्स के और इस मूवमेंट सेंटर का डिस्टेंस क्या है कंसिडर करते हैं. यहाँ पे D1 है और इस फोर्स को हम F1 से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो यहाँ पे मूवमेंट कैसे निकालेंगे हम, F1 इंटू D1. सो यहाँ पे मूवमेंट निकालने के लिए हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट निकालना होगा. दैट इज इस फोर्स से हमें इस पॉइंट तक आने के लिए मूवमेंट क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, बिकॉज द मूवमेंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन एज द क्लॉक मूव्स. ओके, सो हियर द मूवमेंट इज पॉजिटिव. इसके लिए भी सेम, मूवमेंट निकालने के लिए इसे भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट होना होगा और इस पॉइंट को भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट सेंटर है और मूवमेंट सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो भी होगा तो उसे उसका प्रोडक्ट क्या होता है, मूवमेंट. ओके, सो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, सेम यहाँ पे भी एक बीम है और इस पर ये तीन फोर्स अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे मूवमेंट सेंटर है. सो अब यहाँ पर हम मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस इज फोर्स F1 एंड दिस इज डिस्टेंस D1. सो फॉर कैलकुलेटिंग दिस मूवमेंट हमें इस फोर्स को क्या करना होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये फोर्स जा रहा है क्योंकि यहाँ पे फोर्स है और यहाँ पे मूवमेंट सेंटर है. सो तो हमें यहाँ पे मूवमेंट निकालने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस फोर्स को रोटेट करना पड़ेगा. सो जब हम मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे और उस फोर्स को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मींस क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में इसे मूव करेंगे, रोटेट करेंगे, तो उस मूवमेंट को हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं. और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं. Varignon's theorem. In the system of coplanar forces means the force whose line of action lie on the same plane is known as the coplanar forces. And in the system of coplanar forces, the summation of movement due to all forces about the point is equals to the movement due to their resultant about the same point. मतलब कि एक बॉडी है और उस पर हम दो तीन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और मोर देन दैट. ओके, सो उन सभी फोर्सेस की मूवमेंट ऑन दैट पॉइंट, किसी भी पॉइंट से उन सभी फोर्सेस की मूवमेंट की एडिशन, दैट इज समेशन, वो इक्वल होगी उन सभी फोर्सेस के रिजल्टेंट की मूवमेंट
मूवमेंट से, दैट इज उन सभी फोर्सेस का कोई रिजल्टेंट होगा, सेम रिजल्टेंट ऑन दैट बॉडी, एंड उस रिजल्टेंट की भी मूवमेंट ऑन द सेम पॉइंट जहां पर हमने उन फोर्सेस की मूवमेंट निकाली है जिस पॉइंट से, उसी पॉइंट से उस रिजल्टेंट की भी मूवमेंट इक्वल होती है उन सभी फोर्सेस की मूवमेंट के एडिशन से. Okay, so consider this is a body, and on this body there are three forces applied: F1, F2 and F3, and this is the distance, perpendicular distance D1, D2 and D3. अब इन तीनों फोर्सेस की मूवमेंट, इसका मतलब क्या है, F1 इंटू D1, F2 इंटू D2 एंड F3 इंटू D3, इन सभी फोर्सेस की, इन सभी मूवमेंट्स की एडिशन इक्वल होगी इस रिजल्टेंट की मूवमेंट से. ओके, जैसे यहाँ पे रिजल्टेंट हमने, इस रिजल्टेंट की मूवमेंट क्या होगी, R इंटू डी, वो इक्वल होगी इन सभी फोर्सेस की मूवमेंट से, दैट इज F1 इंटू D1, F2 इंटू D2 एंड F3 इंटू D3. इन सभी फोर्सेस की मूवमेंट इक्वल होगी इन सभी इस रिजल्टेंट की मूवमेंट से. ओके, तो उसे हम वेरिग्नस थ्योरम कहते हैं, बट इन द सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस ओनली. ओके, this is the formula for the Varignon's theorem. और वेरिग्नस थ्योरम का यूज हम लोकेट द पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट के लिए करते हैं, मतलब इस रिजल्टेंट की पोजीशन लोकेट करने के लिए भी हम वेरिग्नस थ्योरम का यूज करते हैं इन द कोप्लेनर फोर्स सिस्टम एंड नॉट इन द केस ऑफ कॉन्करेंट एज इट पास थ्रू द कॉन्करेंट पॉइंट. ओके, couple is a pair of unlike parallel forces which are equal in magnitude and opposite in direction and separated by some distance, which produce a rotational effect. And this is a distance which separates two forces. This distance is called as the lever arm or the arm of couple, and these are the two forces which are equal in magnitude in couple, and unlike parallel forces means they are parallel to each other but in opposite direction. This is force P and this is also P. Okay, and the magnitude of movement due to couple is P into A, that is the product of this force and the lever arm. Okay, so movement is the movement due to the couple is the product of force into lever arm. So the unit of couple is Newton meter. Yes, unit of couple is Newton meter. कपल का एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल साइकिल में दो पेडल होते हैं, वो दोनों पेडल अपोजिट इन डायरेक्शन में होते हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होते हैं, बट कंसिडर कीजिए कि वो दोनों पेडल दो फोर्सेस है, और उन दोनों फोर्सेस की वजह से उस साइकिल के व्हील्स में रोटेशन इफेक्ट जनरेट होता है. सो बिकॉज ऑफ कपल वी जनरेट द रोटेटिंग मोशन. Okay, so the couple is two types, clockwise couple and anti-clockwise couple. The couple whose tendency to rotate the body in the clockwise direction, it's called as the clockwise couple, and it is a positive couple. And anti-clockwise couple is negative couple, whose tendency to rotate the body in anti-clockwise direction. Okay, so the couple is the free vector. हमने पहले देखा था कि मैग्नेट मूवमेंट फिक्स्ड वेक्टर है और कपल यहाँ पे फ्री वेक्टर है. तो फ्री वेक्टर और फिक्स्ड वेक्टर में क्या डिफरेंस है, फ्री वेक्टर में हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन गिवन होती है, बट वहाँ पे पोजीशन की नीड नहीं होती, बट फिक्स्ड वेक्टर में हमें पोजीशन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए. तो फिक्स्ड एंड फ्री में यही डिफरेंस है कि फ्री में पोजीशन की जरूरत नहीं होती और फिक्स्ड में पोजीशन की जरूरत होती है, और दोनों में भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की नीड होती है. ओके, characteristics of couple. First is the algebraic sum of force constituting the couple is 0. couple में क्या होता है, दो फोर्सेस होते हैं और दो भी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होते हैं बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, और बिकॉज ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस द कपल हैव अ अपोजिट डायरेक्शन एंड अपोजिट साइंस, और उन दोनों फोर्सेस की एडिशन हम करेंगे और दोनों फोर्सेस भी सेम मैग्नीट्यूड है और उन दोनों फोर्सेस की एडिशन करेंगे तो उन दोनों फोर्सेस की एडिशन 0 आएगी.
Okay, then second, the algebraic sum of moment of force constituting a couple about any point is same. अब दोनों forces का magnitude तो same है और दोनों forces भी एक equal distance से ही same distance से ही divide होते हैं, तो उन दोनों forces की movement निकालेंगे, that is force into that lever arm, दोनों forces की movement क्या आएगी, same आएगी. Then the couple is the free vector because it is a pure turning which is always constant. Free vector means क्या होता है, magnitude and direction given होती है और यहाँ पे पोजिशन की नीड नहीं होती, और बिकॉज ऑफ कपल हम रोटेटिंग मोशन दैट इज टर्निंग मोशन जनरेट करते हैं. देन कपल डज नॉट हैव अ मूवमेंट सेंटर. अब कपल में मूवमेंट सेंटर की जरूरत नहीं होती क्योंकि मूवमेंट हम कपल में मूवमेंट कैसे निकालते हैं, दैट फोर्स इनटू लीवर आर्म. सो यहाँ पे मूवमेंट सेंटर की जरूरत नहीं होती और द रिजल्टेंट ऑफ कपल इज जीरो बिकॉज दोनों फोर्सेस तो सेम हैं, इसलिए उसका हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो कपल का रिजल्टेंट जीरो ही आएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो. अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. और इस वीडियो की हैंड रिटन नोट्स PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं.